Uday bhai for joining us for the session. Just a little introduction about what to expect from the session, about Uday bhai, and for them it might be, but I would lay what I would like to see and hear from you, right? So Dr. Uday bhai is a qualified doctor by profession. He did his medicine. He was practicing with Sri Ram, Sri Krishna Mission in India. He practiced for 3 years proper medicine, and at some point in time he had a moment in life where he said that medicines can only do so much, and that's what was the trigger for him to look at alternate therapies by which people can be cured. The objective of becoming doctor then also was to see how you can cure and help people. An objective when he moved to his second stage in life, which is immediately after 3 years of becoming a doctor, he decided that allopathy can only do the following. Allopathy cannot cure and get things out from root. That was his trigger. He came into this entire thing. He learned this science of aura completely. My introduction and first introduction with aura was thanks to a Mara Sahib called Nandighosh Vijayji Mara Sahib. So he is a Mara Sahib who himself believes in experiments. So whatever he talks about in Jainism, he talks, and he has actually written a book on everything that has been told to us through experiment. Right from the food that you eat, the chari that is expected for you to, kind of things, the fasting that you need to do, all of it is science. And he uses aura big time in his, so that was my first introduction to aura. Each one of us carry our aura. You go to a particular temple, you go to a particular idol, there is a particular idol. Why is it that Palitana Adeshwar Dada to બધે જ છે, પણ Palitana Adeshwar Dada is always dear to us compared to anything else, right? That's because the Murti has that aura. You go to a Ganpati Mandir, same Ganpati exists in our home and exists somewhere else as well. But it's actually the aura that exists in that Murti that gives itself that entire, strength, if you were to call. Likewise, each of us also have an aura. Each of us would have different things, stress, strain, variety of different things that we have. And all of them, you can link it back to the kind of aura that there are some people that we meet in life, we almost, start having conversations with them. And there are some who you look at them and you say, "Aane to be thappad marwa jo hai," right? Why is it? Because that's what your aura actually does. And that's the science behind aura. That's what I have learned. I met him and I got to know that he is coming to Singapore. Like I said, he's been practicing for last 21 years. He's got about 70,000 students who he has trained and who are actively working with him today as well. All these students are spread across the globe. So we thought, since he was here in Singapore, it would be good to have a session and understanding on aura. As and when, and if anybody is interested, you are free to have a one-on-one session. He's still there tomorrow in Singapore. You can plan your one-on-one session. So, without further ado, I would call Dr. Uday Shah to come and talk about aura, how it impacts us, how it impacts our life, how it can actually help us cure things from root rather than just popping medicines and going with it. And all of us in some way do it, right? So, thank you so much, Dr. Uday Shah. So we'll go through a small video and then we'll start with the presentation. I think so everyone is comfortable with Hindi? Hindi is preferred. Preferred, no? Hindi is preferred. Because this video is in Hindi, that's what. तो हम करते क्या है ध्यान साधना में अपने चक्रों का संतुलन करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो जैसे 7 चक्र होते हैं वैसे ऑरा के आभा मंडल के 7 लेयर होते हैं। जो अंदर के 4 लेयर होते हैं वो फिजिकल लेयर होते हैं, शरीर से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद जो आभा मंडल आता है उसे हम इमोशनल ऑरा कहते हैं, भावनात्मक ऑरा। उसके बाद जो आता है वो मेंटल ऑरा, और उसके बाद जो आता है आध्यात्मिक ऑरा, स्पिरिचुअल ऑरा। तो अगर इन 7 ऑरा को आभा मंडल को बैलेंस करना है तो हमें योगा, प्राणायाम, ध्यान और हीलिंग, ये सब चीज को मिलाना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। अगर हम एक ही चीज करेंगे तो शायद उतना ही आभा मंडल हमारा खुलेगा, पॉजिटिव होगा, दूसरा आभा मंडल हमारा कमजोर रह जाएगा। तो काफी बार हम सोचते हैं कि हम इतनी मंत्र की चैंटिंग करते हैं
लेकिन फिर भी मुझे बीमारियां क्यों होती हैं? क्योंकि जब आप मंत्र की चैंट करते हैं, आपका स्पिरिचुअल ऑरा, जो 7वां प्रकार का ऑरा है, वो बहुत पॉजिटिव होता है, लेकिन वो ऑरा अभी तक ऊर्जा अंदर की ऑरा तक नहीं पहुंची, अंदर की शरीर के ऑरा तक नहीं पहुंची, इसलिए आपको बीमारियां होती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये वो। तो आभा मंडल आहार, विहार, विचार, व्यवहार, इन 4 चीजों से बनती है। जब हमारा आहार अच्छा है, सात्विक है, फ्रूट, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट कच्चे फॉर्म में, तब हमारा अंदर का 4 ऑरा आभा मंडल पॉजिटिव होता है। जब हम कोई चीज को मन पे लगा देते हैं कि यार इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे दुख दिया, तो हमारा इमोशनल ऑरा बिगड़ जाता है, भावनात्मक ऑरा बिगड़ जाता है। साइंस के रिसर्च के हिसाब से एक दिन में 60 विचार आते हैं, 60,000 थॉट्स एक दिन में आते हैं, उसमें 90% नेगेटिव थॉट आते हैं, नकारात्मक। तो हमारा मेंटल ऑरा हमेशा डिस्टर्ब रहता है। तो जब हम ध्यान करते हैं, धीरे धीरे हमारा मेंटल ऑरा पॉजिटिव होते जाता है, क्योंकि अब विचारों को कंट्रोल करना सीख लिया हमने। लेकिन ये सारा खेल तब होता है जब आपका 7वां ऑरा, जैसे स्पिरिचुअल ऑरा, आध्यात्मिक ऑरा पावरफुल होना चाहिए, और उसकी साधना इतनी बढ़नी चाहिए कि अंदर तक उसकी ऊर्जा का प्रभाव पड़ना चाहिए, तब जाके। इसलिए काफी लोग हमें कहते हैं, जब हमारे पास ऑरा स्कैनिंग के लिए, सर हम तो 2 साल से ध्यान कर रहे, लेकिन अभी भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हुआ, डायबिटीज कंट्रोल नहीं हुआ, अभी तक कैंसर हमारा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि अब तक वो बाहर का ऑरा अंदर तक नहीं पहुंचा। अब डिफरेंस समझ में है कि नहीं? तो हम मेडिकली जब ट्रीटमेंट करते हैं एलोपैथी में, हम डायरेक्ट अंदर की फिजिकल बॉडी का करेक्शन करते हैं, जिसमें हम पैरामीटर्स नॉर्मल करते हैं, यूनिट्स नॉर्मल करते हैं, ब्लड शुगर को नॉर्मल करते हैं, थायराइड को नॉर्मल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करते हैं। लेकिन सिर्फ अंदर की पैरामीटर टेम्पररी चेंज होती है, जैसे दवाई बंद करोगे फिर से आपका बीमारी बाहर आ जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक में फायदा क्या होता है? समय ज्यादा लगता है, रिजल्ट परमानेंट मिलता है। हमारे एलोपैथी में ट्रीटमेंट होती है, रिकवरी होती है, क्योर नहीं होता। डिफरेंस समझ में है कि नहीं? तो अगर आपको हमेशा परमानेंट ठीक होना है, तो इस आध्यात्मिक का सहारा लेना ही पड़ेगा। जितने सत्संग करोगे, जितने ध्यान करोगे, जितने मेडिटेशन करोगे, उतना आपका आभा मंडल स्ट्रॉन्ग होगा। गुरुओं का आभा मंडल करीबन 50-100 फीट दूर होता है, हमारा आभा मंडल 8 से 10 फीट का होता है। एक आम भाषा में कहें तो जब भगवान की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं हम, तो क्या होता है, जैसे अभी ये श्री यंत्र का गुरुदेव ने एक आभा मंडल ऊर्जा निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा करके, अब ये जब आप घर पे ले जाते हो या अपने दुकान के यहाँ ले जाते हो, तो एक आभा मंडल तैयार होता है, जिससे व्यवसाय, व्यवहार सब पॉजिटिव हो जाता है ना? तो ये कोई फिलोसॉफिक नहीं है, ये साइंस है। जिस चीज की आप प्रतिष्ठा करते हो ध्यान से, साधना से, उसकी एक ऊर्जा निर्माण होती है, एक बीज अंदर जाता है, फिर उस गुरु की जो कृपा होती है, वो शक्तियां उसमें केंद्रित हो जाती है, एक एनर्जी सेंटर तैयार हो जाता है उसमें, और उसमें आभा मंडल। जैसे हम मंदिर में जाते तो प्रदक्षिणा देते, आपने देखा है, प्रदक्षिणा देते। फिर शादियों में भी फेरे देते हम, क्यों लेते हैं? जो पति पत्नी रहते हैं वो अग्नि के बीच में फेरे लेते हैं और अपना आभा मंडल साफ करते हैं कि पिछले कोई भी जन्मों का कोई भी अगर विकार होगा, कोई क्रोध होगा, कोई नफरत होगा, कोई रिवेंज होगा, ये सब ठीक हो जाता है, राइट? शमशान में भी जब जेंट्स जाते हैं, आने के बाद उनको नहाना पड़ता है आभा मंडल साफ करने के लिए, वो तुरंत खा नहीं सकते। घर के लोग जो सदस्य है जिनके घर में मृत्यु हुई है, वो कुछ दिन तक मंदिर में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उस वक्त उस मृत्यु के गए हुए इंसान की आभा मंडल में वो मिक्स हो जाते हैं। महिला की जब मासिक होती है, पीरियड्स जब होते हैं, तब उन्हें मंदिरों में आने नहीं देते या गर्भा अवस्था में नहीं जाने देते, क्योंकि उस वक्त उसका आभा मंडल डिस्टर्ब होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो आप भगवान की मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकते। साइंस है ये पहले मुझे भी नहीं पता था, मैं ये सब चीज़ों को मानता नहीं था, बिकॉज डॉक्टर था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ 17 साल पहले, मैंने लंदन गया और लंदन में मैंने कुछ वहाँ पे इक्विपमेंट्स देखे, एनर्जी डिटेक्टर, जिसको हम ऑरा स्कैनर कहते हैं, या तो वो ऑरा स्कैन से मुझे पता चला कि इस तरह से हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, साधन के जरिए अपना ऑरा स्कैन कर सकते हैं। जैसा CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी होती है,
वैसे ये अलग अलग मशीनरी है वहाँ पे। लंदन में, ब्राज़ील में मैं गया था, अमेरिका में मैं गया था, तो बाद में पता चला कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम इंसान का बीमारी होने से पहले आभा मंडल चेक करके उसको मार्गदर्शन दे सकते हैं। हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बीमारी पहले गैस में होती है, आभा मंडल में आती है, फिर ब्लड में आती है, फिर फिजिकल बॉडी में आती है। प्रॉब्लम हमारे मेडिकल साइंस में क्या है कि जब गैस में बीमारी होती है, एनर्जी में होती है, तब हम एलोपैथी में पकड़ नहीं सकते। जैसे किसी को डायबिटीज है, कैंसर है, अर्थराइटिस है, अस्थमा है, वो सीटी स्कैन सोनोग्राफी में नहीं आता। लेकिन आभा मंडल में अगर देखेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा। कोई तंबाकू सिगरेट का व्यसन होता है तो आभा मंडल में तुरंत पता चलता है। एक्सरे में तो तब चलेगा जब उसको बीमारी पकड़ी है, तब तक पता ही नहीं चलता। तो जब हम किसका ऑरा करते हैं तो हम उसको पूछते हैं आप तंबाकू खाते हो, तो बोलते आपको कैसे पता चला, हमने तो बताया भी नहीं, हमारा एक्सरे तो नॉर्मल है। हमने कहा एक्सरे नॉर्मल है क्योंकि अभी तक वो तंबाकू का जो व्यसन है वो एक्सरे में नहीं आया, लेकिन आभा मंडल में पता चलता है कि यहाँ पे आपकी एनर्जी बिगड़ी हुई है। मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हमारा आभा मंडल बिगड़ता है, ऑरा बिगड़ता है। समझने के नहीं? तो महिलाओं का आभा मंडल अलग होता है, उनका इमोशनल ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। पुरुषों का ऑरा मेंटल ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे हम शिव शक्ति कहते हैं। तो एक पति पत्नी जब दोनों बहुत अच्छे व्यवहार संबंधित रहते हैं, तब उनकी एक शिव शक्ति दोनों की बैलेंस होती है। दोनों की यंग इन एनर्जी, सोडियम पोटेशियम एनर्जी बैलेंस्ड होती है, मेंटल इमोशनल बैलेंस होती है। अब जब ये दोनों बैलेंस्ड है तो स्पिरिचुअल ऑरा और भी ज्यादा एक्सपांड होता है। तो हमारा कर्तव्य क्या होता है इस जीवन में कि हम अगर पुरुष हैं तो हमारी फेमिनाइन एनर्जी को कंप्लीट करना, और महिला है तो उसको पुरुष की एनर्जी को कंप्लीट करना, ये हमारा एक एंड रिजल्ट होना चाहिए, राइट? दोनों एनर्जी जब बैलेंस है तो शरीर स्वस्थ चलता है, बैलेंस चलता है। आपका जो राइट साइड का ब्रेन है ये इमोशनल ब्रेन है। महिलाओं का इमोशनल ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, भावनात्मक होती है, उनके अंदर शक्तियां ज्यादा होती है। मेल का लेफ्ट साइड का ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता है, लॉजिकल ब्रेन ज्यादा होता है, उसमें ब्लू कलर ज्यादा आता है। महिलाओं में पिंक कलर ज्यादा होता है ऑरा में। लेकिन बैलेंस ऑरा ग्रीन बोला जाता है। जब आपका आभा मंडल ग्रीन है इसका मतलब आप स्वस्थ हो। अगर आभा मंडल में कहीं लाल आया तो बीमारी अब आने वाली है, ब्राउन आया तो बीमारी आ गई है, ब्लैक और ग्रे आया मतलब बीमारी बहुत अंदर तक उतर गई है। समझ में है कि नहीं? तो हम जब मेडिटेशन, हीलिंग, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, धीरे धीरे हम ग्रीन की तरफ बढ़ते हैं। आपको सफेद दिखेगा, गोल्डन येलो दिखेगा, पर्पल दिखेगा, ये हाई एनर्जी है। लेकिन वो एनर्जी जैसे जैसे अंदर जाएगी हमारे शरीर को स्वस्थ करती है, जिसे हम मेडिकली कहते हैं रीजनरेटिव चेंजेस। तो हमारे सेल्स फिर से नव निर्माण होते हैं। हमारे सेल्स के अंदर ऊर्जा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसमें एनर्जी का स्टोरेज होता है। जब एनर्जी सही ढंग से स्टोर्ड होती है तो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति, जिसे लिम्फेटिक मेम्ब्रेन, लिम्फेटिक ग्लैंड्स कहते हैं, तब वो अच्छी होती है। तो मेडिकल साइंस में जो हम लिम्फेटिक कहते हैं, रेजिस्टेंस पावर कहते हैं, रोग प्रतिकार शक्ति कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में उससे आभा मंडल कहते हैं, ऑरा कहते हैं। दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। समझ में? शब्द का अलग अलग उच्चारण किया गया है। तो आध्यात्मिक में हम कहते हैं भाई तुम्हारा आभा मंडल सुधारो, तुम्हारी ऊर्जा सुधारो, और मेडिकली हम कहते हैं तुम्हारी रोग प्रतिकार शक्ति सुधारो, तुम्हारा रेजिस्टेंस पावर बढ़ाओ। तो दोनों सेम है। समझे? तो ये बहुत सिंपल साइंस है। जब तक टेक्नोलॉजी नहीं थी हम शायद उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी हम स्टार्ट करें। मेरा नाम डॉक्टर उदेशा है और 25 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ मेडिकल एंड स्पिरिचुअल साइंस के ऊपर। ये वीडियो देख के थोड़ा आपको आइडिया आ गई होगी कि मैं किस सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉज ऑफ डिजीज़ एंड सफरिंग, कि लाइफ में हम सफ़र क्यों होते हैं या हमें बीमारियाँ क्यों होती है।
जब हम यंग होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा कुछ आहार विहार विचार जो भी गलत है वो हमारे बॉडी के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, बिकॉज हम एक मूवमेंट में रहते हैं, एक फ्लो में रहते हैं, एक वाइब्रेशनल कंटिन्यूस हमारी बॉडी में रहती है। सो वी नेवर एक्नॉलेज कि क्या गलत हो रहा है हमारे लाइफ में। लेकिन हेल्थ में कम, रिलेशन में ज़्यादा, रिलेशनशिप में ज़्यादा या फाइनेंस में ज़्यादा इश्यूज होते हैं व्हेन वी आर यंग। जैसे जैसे हमारी एज आगे जाती है फाइनेंस स्टेबल होते जाता है लेकिन हमारे हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। एम आई राइट? सो यहाँ पे एक साइंस यहाँ समझने है कि कोई भी एज में, चाहे हम बच्चे हैं या वी आर एट वेरी ओल्डर एज, हमारी एनर्जी पॉजिटिव चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेडिकल साइंस में एक प्रॉब्लम क्या है, वो एनर्जी बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं है। या तो वो हमें एंटीबायोटिक देते हैं या तो जो भी हमें मल्टीविटामिन्स देते हैं, ये सारे एक्सट्रैक्टेड फॉर्म्स है और उसके साथ कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए रहते हैं। तो 6-8 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटे तक आपके अंदर वो एक इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप रहती है और उसके बाद धीरे धीरे वही मेडिसिन की इफेक्ट खत्म हो जाती है एंड अगेन यू लैंड अप इनटू द सेम प्रॉब्लम, राइट? अब स्पिरिचुअल साइंस की जब हमने रिसर्च शुरू की तो हमें पता चला कि मेडिकल साइंस हार्मोन से शुरू होता है, ग्लैंड से शुरू होता है, जैसे थायराइड है, पिट्यूटरी है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनलिन ग्लैंड, उससे शुरू होता है। स्पिरिचुअल साइंस स्टार्ट होती है चक्रों से। सो शुरू में तो मुझे समझ भी नहीं आया कि ये चक्र, जो मैंने कभी एनाटॉमी में फर्स्ट ईयर मेडिकल में कभी पढ़ा नहीं था, और पूरा वो लोग इस बेस के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट, योगा है, मेडिटेशन है, हीलिंग है, ये इस बेस पे कैसे काम कर सकते हैं, वेयर देयर इज नो कोरिलेशन इन योर बॉडी। बाद में पता चला कि जो हमारे चक्रस होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं, उनके आगे हार्मोन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। जैसे यहाँ थायराइड है, यहाँ पिट्यूटरी है, पीनियल ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पेनक्रियास है, एड्रेनलिन ग्लैंड्स है, गोनोड्स ग्लैंड्स है। तो ये चक्रस जब भी अगर इम्बैलेंसली कहीं मूव करते हैं तो उसके आगे के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, समझ में कि नहीं? और अगर वो कुछ समय तक हमने उसको बैलेंस नहीं किया तो वो हार्मोन्स परमानेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो किसी को थायराइड, किसी को ओबेसिटी हो जाती है, किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, क्रिएटिनिन का प्रॉब्लम, किसी का इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम, ये सब शुरू हो जाते हैं। तो अब साइंस और इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, साइंस को और स्पिरिचुअलिटी को, तो हमें और भी क्लियर समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। हर चक्र का अपना एक कलर है, हर चक्र की अपनी एक ऑसिलेशन स्पीड है। जिस स्पीड से वो घूमता है वो कलर वो निर्माण करता है। यू गॉट माय पॉइंट? समझ में कि ऑसिलेशन से, जैसे पंखा घूमता है, हम 3 पे, 2 पे, 4 पे, रेगुलेटर जैसा होता है ना, तो ये सबसे स्लो घूमता है और धीरे धीरे इस चक्रों की स्पीड बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जाती है, सहस्त्रार चक्र तक जाती है। अब हर एक का प्लेसमेंट अलग है। अब ये मूलाधार चक्र जो फर्स्ट बेस चक्र है, इट इज कंसर्न विथ योर ब्लड, बोन्स, मसल्स, आईज एंड डेंटल प्रॉब्लम। समझ में कि नहीं? मतलब अगर आपके ब्लड में प्रॉब्लम है, डेंटल में प्रॉब्लम है, आईज में प्रॉब्लम है, बोन्स में प्रॉब्लम है, मीन्स समथिंग इज एबनॉर्मल इन दिस चक्र। ये चक्र को आपको इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल जब हमें पैरालिसिस होता है या स्ट्रोक्स होते हैं या मेंटली फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होते हैं, उन लोगों का ये चक्र बहुत वीक होता है, इसलिए उनके मूवमेंट्स नहीं होते। समझ? तो ये चक्र को अगर हमें एक्टिव करना है तो उसके लिए हमें ये लम का मंत्र बोलना पड़ता है। इफ़ वी चैंट द लम मंत्र, LAM, तो धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी वापस नॉर्मलाइज हो जाएगी। सो दिस इज द रेमेडी। यू गॉट माय पॉइंट? अब चक्रस या तो स्लो घूमेंगे या तो फास्ट घूमेंगे, और दोनों कंडीशन में हमें प्रॉब्लम होगा, राइट? फॉर एग्जांपल बच्चे बॉर्न होते हैं तब इनका ये चक्र 30% फास्ट चलता है, तो वो चलते चलते गिर जाते हैं। आपने देखा रहेगा, उनको हमें पकड़ना पड़ता है, अगर 1 साल के है ना, पकड़ना पड़ता है। धीरे धीरे इनके चक्र जैसे बैलेंस्ड होते हैं उनका फिजिकल बैलेंस शुरू हो जाता है, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट अ फिजिकल ग्रोथ। अगर आपको शारीरिक, कोई बोलते हैं मेरी हाइट कम है या मेरी हाइट ज़्यादा है या मेरा वजन ज़्यादा है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस चक्र, राइट? इसलिए इसको मूलाधार, मूल मतलब बच्चा, बच्चे का आधार, इसलिए उसको मूलाधार बोला गया है। सी संस्कृत नेम है लेकिन हम उसको समझेंगे कि ऐसा नाम क्यों दिया गया है। इज इट ओके? सो रेड कलर है तो आपको समझ में आता है, रेड इंडिकेट्स ब्लड, राइट? सो बॉडी स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी बीमारी है, जब तक ये चक्र ठीक नहीं होगा आप ठीक नहीं हो सकते। चाहे आपको डायबिटीज़ है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा, कोई भी है, ये चक्र का नॉर्मल होना ज़रूरी है, राइट? अब सेकंड है स्वादिष्ठाना चक्र, विच इज़ रिलेटेड टू किडनी,
टू फैलोपियन ट्यूब टू ओवेरियन, ये सब चीज़ों से ये कनेक्टेड है, सेक्सुअल ऑर्गन से ये कनेक्टेड है। अब इसको अगर स्प्लिट करें, स्वादिष्टाना, तो व्हाट डज इट मीन? स्वा मतलब मैं, दिष्टान मतलब डायरेक्शन, मैं लाइफ में किस डायरेक्शन में जाता हूँ उसको स्वादिष्टाना बोलते हैं। आप प्रेजेंट लाइफ में क्या कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, हाउस वाइफ हो या टीचर हो, जो एवरीथिंग इज योर, समझ में कि नहीं? सो इफ इन योर प्रेजेंट लाइफ थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, यू नीड टू हील दिस चक्र, समझ में कि नहीं? अगर आपके बॉडी में कोई वाटर रिटेंशन है या इडिमा है, सूजन है बॉडी में कहीं पे, तो ये चक्र को आपको बैलेंस करना है। या किसी को डायलिसिस के लिए कोई जाता है, किसका क्रिएटिनिन ज़्यादा है, इसका मतलब ये चक्र पे उसको हीलिंग की ज़रूरत है, जो समझ में? इसका मंत्र है वम, VAM, वम। तो जब हम ये मंत्र बोलते हैं ना, तो हम वो कलर की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं, तो वो चक्र नॉर्मल हो जाता है, समझ में? दिस इज द वे। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र। मणि मतलब क्या? Some kind of a precious. मणि इज अ डायमंड, समझ में? डायमंड मतलब पूरा पूरा डायमंड है। तो ये चक्र है ना मणिपुर, इट इज रिलेटेड विथ योर मणिपुर, मतलब स्टमक, जठर जिसको बोलते हैं ना, इंटेस्टाइन। तो हमारा पूरा लाइफ किससे, हम जो खाते हैं उसी से तो चलता है, राइट? सो इसके पास 63 चक्रस है, मतलब ये एक चक्र 63 चक्रस को कंट्रोल करता है। आपने रामायण अगर किसी ने पढ़ी होगी या सुना होगा कि रावण मर नहीं रहे थे राम से, अल्टीमेटली उनको समझ में आया कि इनको यहाँ मारना है, देन ही डाइड, बिकॉज पूरा पावर यहाँ होता है। तो जो लोग लेजी होते हैं, काम नहीं करते या काम करने की ताकत नहीं होती, इसका मतलब इनके अंदर ये चक्र वीक है, समझ में? सो व्हेन यू चैंट मतलब रम, RAM, यू स्टार्ट एक्टिवेटिंग दैट चक्र, फिर आपको काम करने की ताकत आ जाएगी। व्हेन यू फील अरे लेथार्जी के, मेरे से काम नहीं होता है, थोड़ा काम करने के बाद मैं थक जाता हूँ, मतलब आप में ये चक्र वीक है, वेदर यू आर मेल और फीमेल डजंट मैटर। सो ये चक्र पे आपको फोकस करना पड़ता है, राइट? कमिंग नेक्स्ट टू इज अनाथा चक्र। अनाथा चक्र इज कंसर्न विथ योर हार्ट, इट इज अ ग्रीन। हम बोलते हैं ना ये दिल का बहुत अच्छा है, या हम हिल स्टेशन पे जाते हैं जहाँ ग्रीनरी होती है, राइट? जैसे अभी यहाँ पे आप देखते हो सिंगापुर में बहुत ग्रीनरी है, सो यू फील वेरी गुड। या आप और कोई भी कहीं इंडिया में भी अगर आप मसूरी जाओ या पंचगनी में जाओ जहाँ पे हिल स्टेशन है, सो दिस चक्र इज कंसर्न विथ योर हार्ट, योर लंग्स। तो किसको भी अगर हार्ट का प्रॉब्लम है या लंग्स का प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये चक्र उसका बहुत स्लो घूम रहा है, तो इट नीड्स टू स्टिमुलेट। तो अगर हम यम करके मंत्र चैंट करेंगे तो ये चक्र नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे, ये सारे मंत्रों की चैंटिंग करते थे जंगलों में जाके, इसलिए 100 साल, 125 साल, 150 साल जीते थे। लेकिन उन्होंने ये कभी किसी लेमैन को नहीं बताया। सो वी आर नॉट नोइंग कि ये लोगों का हेल्दी रहने का कारण क्या है। वो लोग खाते भी कम थे, सोते भी कम थे, लेकिन जीते भी ज़्यादा थे। हम खाते भी ज़्यादा है, सोते भी ज़्यादा है और जीते कम है, समझ में? ओनली बिकॉज दे वर चैंटिंग दैट दे हैड दिस ब्रह्मास्त्र मंत्र। उसके बाद इसका मतलब क्या? अनाथा। अनाथा का मतलब हार्ट, अपना हार्ट मीन्स लिव विथ योर हार्ट, समझ में कि नहीं? तो छोटे बच्चे होते हैं ना, दे लिव विथ देयर ओन हार्ट। उनको जब खाना है, जब सोना है, वो दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट अदर पीपल, राइट? कुछ लोग होते हैं ना, या दे खुद की करते हैं, दूसरी किसकी सुनते नहीं, बिकॉज दे लिव विथ देयर हार्ट, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। सो ये होता है। उसके बाद आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र इज कंसर्न विथ योर थायराइड, इट इज कंसर्न विथ योर वोकल कॉर्ड, है ना? फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट होता है, बिकॉज इमोशनल एक्सप्रेशन जब भी फीमेल्स को नहीं करने देते हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में, तब उनको थायराइड का प्रॉब्लम होता है। या अपने बच्चों को हम लोग जब एक्सप्रेस करने नहीं देते ना, तो उनका वेट का, हार्मोन्स का इम्बैलेंस्ड हो जाता है। सो यू नीड टू अलाउ देम टू एक्सप्रेस। हम बोलते हैं बी डिसिप्लिन, डोंट स्पीक अनवांटेड वर्ड, तो धीरे धीरे इनका ये चॉकअप होता है। इसलिए आपने एक चीज़ देखा है कि बच्चों को कफ कोल्ड ज़्यादा होता है, ये पार्ट बहुत सेंसिटिव। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, टॉन्सिल्स ही निकाल देते हैं, जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं वही निकाल देते हैं। एक्चुअली उसका प्रॉब्लम ही नहीं था, ये एक्सप्रेस नहीं करते थे, चौक था, तो बैक्टीरिया वायरस इधर से घुसते। अगर ये नॉर्मल है तो कुछ जाएंगे ही नहीं, समझ में कि नहीं? सो विशुद्धि का मतलब विष मतलब पॉइजन, शुद्धि। आपने देखा नीलकंठ, शंकर भगवान का नीलकंठ, यहाँ से उन्होंने पॉइजन ये निकाला। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हम का मंत्र बोले। हम मतलब जब आप हमिंग करोगे, यू विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इट।
सो ये आपका चक्र नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। उसके बाद आता है अंजना चक्र, इसको आग्नेय चक्र भी बोलते हैं। मीन्स इट गिव्स योर डायरेक्शन टू योर माइंड, टू योर ब्रेन, इट इज़ अ कमांडर, है ना। हम करते क्या हैं, हमारे माइंड के कमांड को ही फॉलो करते ना, कि मुझे ये पिकअप करना है, ये बोलना है, कुछ भी है माइंड से ही है। सो ये चक्र जिनका भी डिस्टर्ब है उनका माइंड ब्रेन डिस्टर्ब है। मेमोरी का प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम, इंसोमिनिया का, नींद का प्रॉब्लम, इसका मतलब ये चक्र डिस्टर्ब है। अब ये स्लो घूमता है तो डिप्रेशन में जाते हैं, फास्ट घूमता है तो हाइपर चले जाते हैं, ज़्यादा ही स्लो घूमता है तो धीरे धीरे डिप्रेशन इतना चले जाता है कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, समझ में कि नहीं। और ज़्यादा ही फास्ट घूमता है तो दे बिकम ड्रग एडिक्टेड, बिकॉज दे कैन नॉट कंट्रोल देयर माइंड, दे वांट सम स्टिमुलेशन एंड गेट टू वांट ट्रैंक्विलाइजेशन। अरे कटिंग में मतलब कोई बोलता है मुझे सिगरेट का किक चाहिए, ये चाहिए, एक पैक चाहिए, मतलब वो अपने जो नर्वस स्टिमुलेशंस है ना उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं थ्रू द एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस। इस तरह से होता है। अगेन दिस चक्र इज कंसर्न विथ योर पिट्यूटरी हार्मोन्स, मतलब आपके बॉडी में जितने भी हार्मोन्स है सबको कंट्रोल करने वाला पिट्यूटरी हार्मोन्स है, राइट। तो हिंदू माइथोलॉजी में अगर आप देखोगे कि लड़कियों को बिंदी लगाते हैं, या हम हिंदू टेंपल में जाते हैं तो टीका लगाते हैं, मतलब चंदन लगाते हैं टू ट्रैंक्विलाइज योर माइंड। नहीं तो क्या हम लॉजिकल माइंड लेके अगर मंदिर में जाते हैं तो वी कैन नॉट ग्रैब दोस एनर्जी विच इट इज़ देयर इन द टेंपल। सो देखो कुछ तो साइंस है। और आपने देखा मैरिड लोगों को लाल बिंदी लगाते हैं, मीन्स द रूट चक्र का जो कलर है वो यहाँ पे लगाते हैं दैट इन। और सिंदूर भी आप देखो यहाँ से यहाँ लगाते हैं, बिकॉज फ्रॉम ईयर टू ईयर इट इज़ योर जर्नी, नो वन कैन इंटरफियर। फ्रॉम आग्नेय चक्र टू क्राउन चक्र नो वन कैन इंटरफियर, इट इज़ अ फ्री विल फॉर एवरीवन। आपको सोचने में कोई रोक सकता है? कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इट इज़ योर जर्नी, आपको जो भी जगह का बारे में सोचना है आप सोच सकते हो, राइट। सो फ्रॉम ईयर टू ईयर द जर्नी इज आवर ओन, राइट। अब सहस्त्रार चक्र का मतलब है क्राउन चक्र। आपने अगर बुद्धा का फोटो देखा होगा या आइडल देखा होगा, आपको लगता है उन्होंने कुछ ऐसे वीक पहना है या ऐसा कुछ है, इट इज़ नॉट। वो चक्रस खुले हुए हैं, पेटल्स है ना, ये सारे पेटल्स ओपन है, राइट। सो दिस इज द वे दैट एनलाइटनमेंट लोगों के ये चक्रस ओपन होते हैं। दे आर 24/7 रिसीवर ऑफ अ कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, उनको हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है कि अंदर से लाइट बाहर आती है। नॉर्मली आपके बाहर से लाइट को आप अंदर लेते हो, समझ में कि नहीं। तो यह 24/7 इनका ये चक्र खुला है, इसलिए वो लाइट यूनिवर्स में डालते हैं, दे आर सोर्स ऑफ द लाइट, राइट। सो ये इतना इम्पोर्टेंट है। अब उसको थोड़ा हम आगे देखते हैं कि ये चक्रस को कंट्रोल करता कौन है, मीन्स हाउ इट इज बैलेंस और इम्बैलेंस, हाउ इट हैपेंस। इट हैपेंस अकॉर्डिंग टू योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। आपको पता है आपने अपनी कुंडली बनाई होगी, कभी किसी ने तो बर्थ डेट के हिसाब से कुंडली बनाई होगी। अब आपके किसी के कुंडली में बोला होगा कि आपको मंगल दोष है, या काल सर्प दोष है, या आपका राहु काल चल रहा है, या शनि की पनौती चल रही है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। अब इतना रिसर्च करने के बाद समझ में आया हर प्लैनेट की इफेक्ट हर चक्र पे गिरती है। फॉर एग्जाम्पल मूलाधार चक्र इट इज़ कनेक्टेड विथ मास, मंगल। अब किसी का मंगल वीक है, मांगलिक है, तो उसकी शादी लेट होती है, उसको बच्चे लेट होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी, उसको फाइनेंस में प्रॉब्लम आता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं हिंदू माइथोलॉजी में कि भाई गणपति के मंत्र करो या मंगलवार करो। तो आपने कभी सोचा ही नहीं रहेगा भाई मेरा प्रॉब्लम पैसे का है, वो मंगलवार करने से क्या होगा, बिकॉज वो चक्र को नॉर्मलाइज करता है। जो इफेक्ट आपका मंगल का पड़ रहा है आपके रूट चक्र पे, वो स्लो घूम रहा है, तो जॉब का इश्यू, रिसेशन का इश्यूज, या रिलेशनशिप के इश्यूज, या हेल्थ के इश्यूज जो भी है, वो इफेक्ट आपके मूलाधार पे पड़ रहा है, इसलिए आपका इनडायरेक्ट इफेक्ट है। जैसे आपने इस मूलाधार चक्र पे काम करना शुरू किया, मंगल पे शुरू कर दिया, डेफिनेटली आपके धीरे धीरे हेल्थ अच्छे होंगे, रिलेशन अच्छे होंगे, फाइनेंस अच्छा होगा। समझ में कि नहीं। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीज मूलाधार चक्र से कंट्रोल, इट इज कंट्रोल बाय मंगल ग्रह, राइट। उसके बाद हमने कौन सा देखा, रूट चक्र के बाद कौन सा चक्र है, स्वादिष्ठाना, है ना, ऑरेंज कलर का जो देखा, इट इज कंसर्न विद सैटर्न, शनि। तो हम बोलते हैं अरे शनि की पनौती चल रही है, आजकल मेरा काम ही नहीं बन रहा है। हम बोलते हैं 2.5 साल की पनौती है या 7.5 साल की पनौती है,
उस टाइम पे क्या होता है, सैटर्न की इम्पैक्ट डायरेक्ट आपके सैक्रल चक्र पे गिरती है और वो स्लो डाउन कर देता है। अब इसकी एक खासियत क्या है, साढ़ासती आने से पहले अगर आपने कुछ अच्छा काम किया होगा तो आपको बहुत फ्रूटफुल मिलेगा, मतलब वो एक इनकम टैक्स की रेड है, समझ में है कि नहीं। और अगर आपने कुछ बुरा किया है साढ़ासती के पहले तो वो आपको बार बार पेनल्टी दिलवाएगा, अनवांटेड केसेस में फंसवाएगा, डिवोर्स करवाएगा, या आपको हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा, या जॉबलेस कर देगा आपको। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन बिफोर साढ़ासती। सो साढ़ासती में कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ रिजल्ट। जैसे हम नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट इज नॉट दैट एग्जाम, एग्जाम ऑलरेडी यू हैव अपीयर्ड बिफोर, समझ में कि नहीं। अब आप हनुमान चालीसा करो या शनि का कोई भी करो तो डेफिनेटली आप उस स्वादिष्टाना चक्र के ऑसिलेशंस को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। सी अगेन दैट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर, समझ में है कि नहीं, राइट। उसके बाद हमने कौन सा चक्र देखा, मणिपुर चक्र देखा। इट इज कंसर्न विथ योर जुपिटर, गुरु। हम काफी बार बोलते हैं ना इसका गुरु बहुत बलवान है, किसी ना किसी गुरु की छाया इसके ऊपर। एंड इवन दैट चक्र इज कंसर्न विथ योर पेरेंट्स, आपकी पेरेंट्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर कितनी है, दैट इज ऑल्सो अगेन इम्पॉर्टेंट इन दैट मणिपुर चक्र, है ना। सो अगर आप कोई भी गुरु को वर्शिप करते हो हुसोएवर और बहुत फेथफुली सरेंडरली करते हो तो ये आपका चक्र हमेशा अच्छा रहेगा। लेकिन काफ़ी लोग नास्तिक होते हैं, आई डोंट बिलीव इन एनी गॉड, आई डोंट बिलीव इन एनी गुरु, तो काफ़ी बार उनका जो कुंडली में नीच गुरु होता है, जुपिटर बहुत नीच का होता है, सो दे डोंट बिलीव, राइट। सो इसके वजह से इनको कॉन्स्टिपेशन होते हैं, डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है, या उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि दे कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग व्हाट एवर दे थिंक, समझ में ना। आपने देखा कि रावण ने बहुत ध्यान तपस्या साधना की तो उन्होंने अपने मणिपुर चक्र को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो उनके पास इतना फायर था, और इतना, और ये जो फायर था, ये एनर्जी थी, उनकी एनर्जी यहाँ तक जाती थी, इसलिए उनका इंट्यूशन भी था, साइकिक पावर भी था, एंड ही कुड चेंज इनटू मैटर इनटू एनी फॉर्म। उन्होंने खुद का भी वेश बदलना, इतना उनमें ताकत, ग्रहों को भी कंट्रोल करना सीख लिया था, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बिजनेस में सक्सेस होना है या आपको काम करते रहना है कंटिन्यूसली तो मणिपुर चक्र को या गुरु को वर्शिप करना पड़ेगा। इज इट क्लियर, राइट। उसके बाद आता है हार्ट चक्र पे, उस यहाँ पे आता है वीनस। वीनस का मतलब शुक्र होता है ना, तो हम बोलते हैं ना दिल का अच्छा है करके। सी एवरीथिंग हाउ इट स्टैंड के उसका स्टोन भी यही कलर का होता है, ग्रीन कलर का, मतलब हर चीज है ना परफेक्टली। जैसे ये पुखराज है, ये गुरु का स्टोन है जुपिटर का। सी हाउ दिस एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट इज कनेक्टेड विद द सेम चक्रस कलर, सो इट इनडायरेक्टली हेल्प्स यू। 100% हेल्प नहीं करेगा, ये 30% 40% आपको हेल्प करेगा, राइट। ऐसा नहीं कि ये पहनने से आपका 100% ठीक हो जाएगा, उसके बाद समथिंग यू हैव टू डू इट, राइट। अब ये जो वीनस है, ये वीनस क्या करता है, इट कीप्स यू हैप्पी, हम मतलब हमेशा खुश रखता है ये। अब जिसका ये चक्र वीक है या जिसका वीनस वीक है उसको काफ़ी बार इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम होता है, उसके मैरिज का भी प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसका शुक्र नीच का है, समझ में कि नहीं, उसके स्पर्म काउंट्स लो होते हैं। तो ऐसे टाइम पे ही नीड्स टू वेयर और ही नीड्स टू वर्शिप द शुक्र ग्रह, दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। उसके बाद यहाँ पे दिस इज विच चक्र, विशुद्धा चक्र। विशुद्धि चक्र इज कंसर्न विद बुद्ध, राइट। सो हम बोलते हैं ना भाई इसकी बुद्धि भ्रष्ट है, इज वन इज दिस बुद्धि इंटेलेक्ट एंड दिस इज द अदर, राइट। सो दिस इज अ बुद्धि ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज बुद्धि ऑफ योर कंपैशन, मतलब जो आप एक्सप्रेस करते हो, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी का बुद्ध नीच का है तो वो बहुत है ना बोलने में रूड होता है, या तो एक्सप्रेस नहीं करेगा, और करेगा तो बहुत, हम बोलते हैं यार ये हमेशा गाली गलौच ही करता है, इसके मुंह से तो गंदा ही कुछ निकल रहा है, बिकॉज ये इसका नीच का है, समझ में कि नहीं। सो मेल व्हेन दे डोंट एक्सप्रेस दे ईट टोबैको, टोबैको मतलब तोबैको, सो व्हेन दे कांट स्पीक दे ईट द टोबैको, दे स्मोक और दे च्यू द टोबैको। सी दिस इज द साइंस, है ना। जैसे अभी कोई एक जॉब कर रहा है और वो बॉस के सामने नहीं बोल पा रहा है तो फिर उसको आदत लगती है। जैसे आपने इंडिया में देखा होगा कि टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं या ऑटो ड्राइवर्स होते हैं, ये लोग तंबाकू ज़्यादा खाते हैं बिकॉज ये कस्टमर से बात नहीं करते। यहाँ तो भी मैं सिंगापुर में देखता हूँ कि ड्राइवर्स बात करते हैं हमसे, लेकिन वहाँ पे कोई बात नहीं करता है,
दिन भर वो टोबैको चू करता है, बिकॉज उसे लगता है यार मैं बोलूँगा कस्टमर नाराज हो जाएगा, तो वो अपने आप को इन्फीरियर फील करता है। समझ में कि नहीं? सो हियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू एक्सप्रेस एंड you need to have a good बुध ग्रह in your astrological chart। उसके बाद ये कौन सा चक्र है? आग्नेय चक्र। इट इज कंसर्न विथ चंद्रमा, मून, है ना। हम बोलते हैं ना मून एंड मूड चेंज होते हैं, मून चेंज होता है, मूड चेंज होता है। हैव यू सीन? ज़्यादा साइकोलॉजिकल अटैक्स कब आते हैं? कब आते हैं? नो मून, फुल मून, है ना, या पूर्णिमा के टाइम पे वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल। इसलिए काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि ऐसे टाइम पे उपवास करना चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए, बिकॉज देन योर माइंड इज ट्रैंक्विलाइज, यू आर नॉट हाइपर। समझ में कि नहीं? सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो इसका जो मंत्र है ना ओम है, तो इसलिए हमारे हिंदू में जितने भी मेडिटेशन है ज़्यादा करके आश्रमों में हमें ओम चैंटिंग सिखाते हैं। सो व्हेन यू डू ओम चैंटिंग यू ट्रैंक्विलाइज, ये चक्र्स को एकदम नॉर्मलाइज करते हो, देन यू आर कूल एंड काम। आपका राइट साइड का ब्रेन, लेफ्ट साइड का ब्रेन बैलेंस रहता है व्हेन यू चैंट द ओम। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो किसी का चंद्र वीक है ना, तो काफ़ी बार उसको ओबेसिटी का प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम्स रहते हैं, राइट। इसलिए पर्ल मोती पहनाते हैं उसको, आपने देखा होगा, राइट, टू नॉर्मलाइज दैट थिंग। अदरवाइज यू हैव टू चैंट द ओम मंत्र, राइट। लास्ट ये चक्र कौन सा है? सहस्त्रार चक्र। इट इज कंसर्न विद द सूर्य, सन। मतलब हमारा सूर्य कितना पावरफुल है, इतनी हम स्पिरिचुअल हैं। एक सूर्य यहाँ पे है जो जुपिटर से कंसर्न है, और एक सूर्य यहाँ पे है जो हमारी स्पिरिचुअलिटी से कंसर्न है, राइट। हम बोलते हैं इसका सूर्य बहुत उच्च का है। जब उच्च का सूर्य होता है तो मैक्सिमम टाइम ही स्पिरिचुअल, ये किसी ना किसी मतलब मेडिटेशन में रहता है या अपनी लाइफ में रहता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करेगा, he will enjoy his own company। Is it clear? The 7 chakras and 7, now remaining is the 2 chakra, left hand chakra हाथ में, right hand chakra। left hand chakra is concerned with your राहु। राहु is a receiver। आपने सांप का मुंह देखा रहेगा, खुला होता है, this is a राहु। and right hand chakra is केतु, it is a donor। समझ में ना? तो ये रिसीवर है, ये डोनर है। आपने देखा कि भगवान या गुरु ऐसे बैठते हैं, कभी उल्टा नहीं बैठते। सो दिस इज यू आर रिसीविंग सम एनर्जी फ्रॉम द कॉस्मिक एंड दिस इज योर गिविंग इट। इज इट क्लियर? प्लैनेटरी थिंग्स, सी हाउ द ऑसिलेशन अफेक्ट्स। आप ग्रहों को कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने चक्रस के ऑसिलेशंस को चेंज कर सकते हो। दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी। नाउ लेट अस गो टू द प्लैनेट्स, एलिमेंट्स। वी आर मेड अप ऑफ द 5 एलिमेंट्स। हम 5 पंच महाभूता से बने हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, स्पेस। अर्थ इज कंसर्न विद योर मूलाधार चक्र, रूट चक्र अगेन, है ना। मतलब अगर हम कुछ भी फूड डालेंगे अपने स्टमक के अंदर तो आपका मूलाधार कमज़ोर होगा, आपका अर्थ एलिमेंट कमज़ोर होगा। आप अगर स्पाइसी फूड खाते हो, ऑयली फूड खाते हो या ज़्यादा जंक फूड खाते हो तो धीरे धीरे आपका मूलाधार चक्र बिगड़ते जाएगा, रूट चक्र, योर हेल्थ विल गेट स्पॉइल्ड, राइट। सो ये आपको बहुत ख्याल रखना है। अगर रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाओगे, जैसे अभी वैगन खाते हैं लोग, वाई टू इम्प्रूव देयर मूलाधार चक्र, राइट। सो ओल्ड एज में क्या होता है, हमारे लेग्स वीक होते हैं। पहले सबसे पहले लेग्स वीक होते हैं ना, चलना ये वो ये सब होता है, बिकॉज धीरे धीरे आपके जो डस्ट पार्टिकल है, कार्बन पार्टिकल्स है ना, ये धीरे धीरे मूलाधार रूट चक्र में डिपॉजिट होते हैं। जिस फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम है उसको फाइब्रॉइड सिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं पार्टिकल डिटॉक्सीफाई नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट हो जाता है, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इवन आफ्टर मेनोपॉज आपने देखा रहेगा इश्यूज ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वो टाइम पे क्या डिटॉक्सिफिकेशन होता नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा ये रूट चक्र, मूलाधार चक्र डिस्टर्ब हो जाता है, एंड उसका जो कनेक्टेड ऑर्गन सिस्टम है वो वीक हो जाते हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। इट इज़ कंसर्न विद वाटर एलिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, कंसर्न विद किडनी, राइट। नाउ अवर 78% to 80% बॉडी इज वाटर, राइट राइट। तो अगर हमारा पानी गलत है, मतलब सपोज आप ये कोल्ड ड्रिंक्स या हार्ड ड्रिंक्स जो भी पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी पीते हो, तो उसमें क्या होता है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम पहले वीक होती है, लिम्फेटिक, उसके बाद आपकी ब्लड डिस्टर्ब होती है। डायरेक्ट आपका ब्लड डिस्टर्ब नहीं होगा, राइट। सो वाटर शुड बी
वाइब्रेंट एनर्जी, हम लोग नॉर्मली ये जो बिस्लरी पानी पीते हैं ये स्टेगनेंट वाटर है, फिल्टर्ड है लेकिन स्टेगनेंट है, इसमें एनर्जी नहीं है। इसलिए इंडिया में आपने देखा लोग गंगा की तरफ जाते हैं, क्यों जाते हैं? बिकॉज देयर इज अ फ्लो। सो वेयर एवर देयर इज अ फ्लो देयर इज नो स्टेगनेशन, राइट? तो आपकी भी कैसा है, वाटर का एक फ्लो चाहिए आपकी बॉडी में। जब नहीं होता है तो आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, जाने दो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यू, राइट? उसके बाद आता है फायर एलिमेंट मणिपुर चक्र पे। अब फायर इज कंसर्न विथ व्हाट? फायर इज कंसर्न विथ व्हाट? इट इज कंसर्न विथ सन गॉड, राइट? अभी आपके फ्रूट्स वेजिटेबल में सन की रेज है, और अगर आप उसको कुक करते हो तो वो जल जाती है, जो नेचुरल सन रेज है। आप उसको बैक करते हो, जो भी करते हो, या सपोज माइक्रोवेव में डालते हो, तो अंदर सन एनर्जी मर गई, तो धीरे धीरे आपकी जो जठर है, जो इंटेस्टाइन है, आंतड़ी है, वो आपका डैमेज हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दिन में एटलीस्ट आपको एक बार तो रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट आप में ये सन एनर्जी बनी रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? उसके बाद आता है एयर एलिमेंट कंसर्न विथ योर हार्ट चक्र। नाउ एयर एलिमेंट का कंसर्न कौन से ऑर्गन से है? लंग्स, है ना? तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन बाहर निकालते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? है ना? तो इफ यू आर वेजिटेरियन तो हमें हमारा वो बैलेंस रहेगी। इफ यू आर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड तो उससे क्या होगा? इट इज लाइक अ ह्यूमन बीइंग, वो भी ऑक्सीजन लेता है, कार्बन बाहर फेंकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इफ वी आर ईटिंग वेजिटेबल्स तो क्या होता है, हमारे अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है। इफ यू आर ईटिंग नॉनवेज, हमारे अंदर कार्बन ज़्यादा जाता है। तो नॉनवेज फूड खाना बेकार नहीं है, आपकी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है। आर यू एबल टू डाइजेस्ट इट? आर यू एबल टू डिटॉक्सीफाई इट? आप थ्रो कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप समझो एक्सरसाइज करते हो या कुछ लेबर वर्क करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम सेडेंटरी लाइफ जीते हैं तो हमें फाइबर फूड्स या वेजिटेबल्स पे ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा, है ना? स्पेशली लेडीज इफ दे आर हाउस वाइफ और उनमें मूवमेंट्स नहीं है तो फिर वो नॉनवेज क्या करेगा? टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा बॉडी में कहीं ना कहीं, राइट? सो वंस इन द वाइल्ड खाया ठीक है, वीक में एक बार या 2 बार ठीक है, बट डेली इफ यू ईट तो यहाँ पे ओवरलोडिंग होगा। बिकॉज नॉनवेज इज अ डेड फूड, नॉनवेज इज अ डेड फूड, तो वो डेड फूड अंदर जाएगा तो डेड एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे कि नहीं? Am I right? समझ में कि नहीं? राइट? सो हमारा ये फायर एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एयर एलिमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे हमारा ब्रेथ है। सो आप अगर प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम ये सब करते हो, भस्त्रिका करते हो, तो आपका एयर एलिमेंट ठीक है, तो ऑक्सीजनेशन बढ़ गया बिकॉज आप लंग्स को एक्सपांड करते हो। लंग्स को एक्सपांड किया मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा लेता है। ऑक्सीजन जितना अंदर ज़्यादा जाएगा वो ब्रेन में जाएगा, क्योंकि 70% तो ब्रेन ही ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। तो अगर ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो सोचने की कैपेसिटी कम, मेमोरी कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगा, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, बाद में आप चिढ़ जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन कम जा रहा है ना? सो लंग्स के थ्रू ब्रेन का फायदा होता है, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लास्ट एलिमेंट इज अ स्पेस एलिमेंट, ईथर एलिमेंट। इट इज कंसर्न विद योर अपर 3 चक्र, राइट? अब अपर 3 चक्र को स्पेस चाहिए। अगर आप किसी को बोलने नहीं दोगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा कि नहीं? उसको स्पेस नहीं दे रहे आप, राइट? कहीं पे भी आप स्पेस दोगे तो ही इज फीलिंग फ्रीडम, ही विल फील बेटर। लेकिन अगर आप किसी की स्पेस ऑक्यूपाई करोगे, विल यू फील गुड? नहीं। तो अगर आप किसी के माइंड में इंटरफियर करोगे उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको आप एक्सप्रेस करने नहीं दोगे उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसकी कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इंटरफियर करोगे उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये ऊपर के 3 चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज ये स्पेस दे रहा है, राइट? इंडिया में कैसा होता है, लोग एक दूसरे को स्पेस नहीं देते, एक दूसरे की लाइफ में इंटरफियर करते, तो वी फील अनकंफर्टेबल, राइट? हम दूसरे कंट्रीज में आते तो हमें अच्छा लगता है बिकॉज वो अपनी अपनी लाइफ में मस्त रहते, दे डोंट इंटरफियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में ना? तो स्पेस इंपॉर्टेंट बहुत है। तो इससे क्या होता है, यू टेक योर ओन एक्सपीरियंस एंड यू ग्रो। यू आर नॉट इंटरफियरिंग इन देयर एक्सपीरियंस एंड यू आर नॉट डोमिनेटिंग योर एक्सपीरियंस ऑन देम। आप अपने अनुभव को उनके ऊपर थोपते नहीं होकर, राइट? सो आई होप दिस 5 एलिमेंट इज क्लियर, राइट? अब ये एक चक्र देख सकते हो इसमें किस तरह, सॉरी
एक एक चक्र यहाँ दिख रहा है, रूट चक्र, सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र, एयर एंड ईथर, है ना, 7 चक्रस दिख रहे हैं ना, एंड 5 एलिमेंट्स यहाँ दिख रहे हैं, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम थोड़ा उसको और डीपर लेवल पे देखते हैं, बिकॉज प्लैनेट्स देख लिए, एलिमेंट्स देख लिए. अभी हम उसको कर्मा वाइज देखते हैं कि हमारे 7 चक्रस के कनेक्टेड 7 टाइप्स ऑफ कर्मास होते हैं. क्राउन चक्र पे हमारा स्पिरिचुअल कर्मा होता है. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप जिस गुरु को फॉलो करते हो या जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, दैट डजंट मीन दैट अदर्स शुड फॉलो इट. Am I right? So if you interfere, it is a spiritual karma. So never interfere. वो जिसको भी मानता है, जिसको भी follow करता है, let him follow. Never interfere. Is it okay? Second is the mind karma. जैसे मैंने आपको बताया, किसी के thoughts में interfere नहीं करो. Give him freedom. Let him think whatever he thinks. Because he is here to nullify his karma. He is not here to nullify your karma. तो वो जो सोचता है, वही वो करेगा. और वो जो करेगा, ही इज रिस्पॉन्सिबल अबाउट दैट. एम आई राइट? सो लेट हिम थिंक एंड लेट हिम वर्क ऑन हिज ओन. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. थर्ड इज इमोशनल कर्मा. आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन आप सामने वाले को फोर्स नहीं कर सकते हो. यू शुड फील सेम. जैसे आप कोई मूवी गए, आपको पसंद नहीं है, आप उसको फोर्स नहीं रहे, तेरे को क्या अच्छा नहीं लगा, इतना अच्छा था ये. यू कैन नॉट टेल दैट थिंग, because it is up to him whether he felt good or bad. He has the freedom to express it, right? उसके बाद हमारा हार्ट चक्र का आता है लव कार्मिक. हम जिसको प्यार करते हैं, जरूरी नहीं वो भी हमें प्यार करे, या हमें जो चीज़ अच्छी है जरूरी नहीं उसको भी वो अच्छी लगनी चाहिए. समझ में कि नहीं? You are good by your heart, let him be with his own heart. So you don't have to interfere in anyone's feelings and heart, right? Now here comes the ancestors karma. हम जिसको पितृदोष कहते हैं, सुना है कि नहीं? हम पितृदोष है. तो पितृदोष का मतलब क्या है कि एंसेस्टर्स कोई आपको कर्स नहीं कर रहे हैं, जो हमें गलत साधु संत बताते हैं कि भाई आपको पूर्वजों की हाई लगी है या उनकी कुछ, ऐसा कुछ नहीं है. उनकी कॉन्शियसनेस में कुछ अंडर लेसन या कुछ अधूरापन था, या उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट किया था कि भाई मेरा बेटा, मेरा पोता मेरा ये नाम करेगा, ऐसे से करेगा. सो उन्होंने कुछ हमारे लिए एक होमवर्क रखा है और वो हमें होमवर्क पूरा करना है. इट्स नॉट अ कर्सिंग कि हम कहीं पे जाके उसको है ना पितृदोष को निकालें. दोष इज नथिंग बट एन इनकम्प्लीट वर्क. हमें डराया गया कि वास्तु दोष है मतलब घर आपको तकलीफ दे रहा है, ग्रह दोष है मतलब आपको प्लैनेट्स तकलीफ दे रहा है. इट्स एन इनकम्प्लीट वर्क दैट यू हैव टू कंप्लीट इट. दैट इज अ दोष. इज इट क्लियर? मतलब हम उसको रिलीजियस एंगल से नहीं देख रहे हैं, हम उसको स्पिरिचुअल एंगल से देख रहे हैं. दिस इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? सो पितृदोष का मतलब क्या है कि वी हैव टू वर्शिप आवर पेरेंट्स, एंसेस्टर्स. समझ में कि नहीं? बिकॉज आज उनका डीएनए हमारे अंदर है, उनकी ब्लड हमारे अंदर है ना, उनकी बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर है, उनका कल्चर हमारे अंदर है, उनकी सिस्टम्स हमारे अंदर है, फिजिकल और या मटेरियलिस्टिक सब चीज़ हमारे साथ है. तो समवेयर वी हैव टू पे समथिंग टू देम. इट्स नॉट अ पेनल्टी, इट्स अ रिस्पेक्ट, इट्स अ लव. समझ में कि नहीं? आज आप जिंदा हो, आप मरने के बाद क्या अपने बच्चों को या पोते पोतियों को कर्ज करोगे? टेल मी, करोगे? कभी नहीं करोगे. लेकिन हाँ, इतना सोच के रखोगे कि ये मेरे से नहीं हुआ, हो सकता है कल मेरा बच्चा ये मेरी इच्छा पूरी करे या मेरा पोता पोती पूरा करे. तो इट इज़ नॉट कर्ज फॉर देम. आपने अपनी एक चेतना में एक होमवर्क उनके लिए रखा है. सो दे हैव टू डू इट इफ दे कैन डू इट. इफ दे कांट डू इट, इट इज़ नथिंग रॉन्ग. ठीक है ना? बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ योर जर्नी. सो विथ लव यू कैन स्पीक टू योर एंसेस्टर वेदर दे आर फिजिकली प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट. दैट सॉरी आई एम नॉट एबल टू डू, डोंट फील बैड. आप ऐसे दिल से बोल सकते हो. काफ़ी बार आपके बच्चे बोलते हैं ना, नहीं आज मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मुझे ये पसंद नहीं है. तो क्या आप उनको कर्ज करते हो? कुछ श्राप आप देते हो क्या? हाँ, क्या रे तूने आज मेरी सब्जी नहीं खाई, तुझे तो ऐसा श्राप दूँ? कुछ नहीं बोलते वो. नहीं बेटा ठीक है, दूसरा बनाएंगे या और कुछ करते हैं हम अल्टरनेटिव, राइट? सो दिस इज द वे कि हमें पंडित, पुजारी मतलब डॉक्टर्स और प्रीस्ट, ये दो कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जो फियर क्रिएट करते हैं हमारे अंदर, राइट? डर क्रिएट करते हैं. द सेकेंड लास्ट इज द प्रेजेंट लाइफ कर्मा. किसी के भी प्रेजेंट लाइफ में कभी इंटरफियर मत करो.
वॉट एवर ही इज डूइंग लेट हिम डू, गिव द स्पेस। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या है कि उसकी प्रेजेंट लाइफ उसके प्रारंभ कर्मा से चल रही है, समझ में कि नहीं? रूट पे संचित कर्मा है, सैक्रल पे प्रारंभ कर्मा है। ही नोज बेटर व्हाट ही हैज टू डू। उसको जॉब करना है कि बिजनेस करना है, शादी करनी है कि नहीं करनी है, उसको बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, लेट हिम डिसाइड। इज इट ओके? यू डोंट हैव टू इंटरफियर इन एनीवन्स पर्सनल लाइफ इन प्रेजेंट लाइफ। इज इट ओके? द लास्ट थिंग इज सबसे इंपॉर्टेंट, दैट पास्ट लाइफ कर्मा। हम लोग अभी तक ऐसी कितने लाइफ्स के कर्मा लेके आए, डोंट यू थिंक? डोंट यू थिंक? मैंने अपनी 113 पास्ट लाइफ देखी है। आई हैव वेरीफाइड दोज प्लेसेस, द ईयर, द टाइम वेयर आई हैव टेकन द बर्थ, एंड मैंने 3500 लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है। उसमें 40% से ज़्यादा लोगों ने मुझे अपनी पास्ट लाइफ में देखा है। एंड व्हेन आई आस्क्ड देम मेरा नाम बताओ या साल बताओ या जगह बताओ, एग्जैक्टली उन्होंने वही बताया जो मैंने देखा है। सो इट कैन नॉट बी इल्यूजन। एक आदमी झूठ बोल सकता है, 4 आदमी मुझे वही नाम से बोलते हैं कि भाई तुम्हें मैंने गोवा में देखा है ये नाम से, या तुम्हें मैंने पौंडीचेरी में देखा है ये नाम से। हाउ कैन इट बी द सेम? आप दोनों अलग अलग थिएटर में बैठे हो, आप बाहर आते हो, कैन यू टेल द स्टोरी ऑफ दैट मूवी? कैन यू टेल? यू कैन नॉट टेल। आप एक अलग स्क्रीन में थे, आप एक अलग स्क्रीन में थे, आप इधर के नहीं बोल सकते हो, इधर का नहीं बोल सकते। एम आई राइट? लेकिन ये पर्सन अगर पास्ट लाइफ में जाके अगर आपको देखता है जो आपने ऑलरेडी देख चुके हो, और अगर वो टैली होता है, मीन्स रियली दैट एग्जिस्ट। एम आई राइट? अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमने इतने सारे लाइफ्स लिए हैं, और कितने लाइफ्स में हमने अधूरे अधूरे रिलेशनशिप रखे हैं, अधूरे हमने कमिटमेंट्स किए, अधूरे हमने कॉन्ट्रैक्ट्स रखे हैं। अब वो प्रेजेंट लाइफ में कहीं ना कहीं बाहर आते हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू डील विद इट। सो आई से 2 थिंग्स, 2 सेंटेंस को इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक, हु स्टार्टेड द कर्मा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हु एंडेड द कर्मा इज इम्पॉर्टेंट। ये एक चीज को ध्यान रखना। इज इट क्लियर? किसने स्टार्ट किया? बिकॉज ये लूप साइकिल है, किसने शुरुआत की किसको पता, राइट? बट हु एंडेड इज इम्पॉर्टेंट, ये पहली थिंग है। दूसरी थिंग है, whenever there is no logic what is happening in your life means this is a karma। जहाँ पे आपको आंसर नहीं मिल रहा है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो समझ लो वो कर्मा है, और इफ़ यू एक्सेप्ट इट विल गेट डिसॉल्व। सो लोग ऐसे बोलते हैं कि कर्मा इज अ सिन, जो आपने पाप किया है वो आप वापस लेके आए हो। आई डोंट से दैट वे, आई से कर्मा इज अ सिस्टम ऑफ न्यूट्रलाइजिंग इट। इज अ सिस्टम, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजिंग। आप आए हो कुछ न्यूट्रलाइज करने के लिए, आप आए हो कुछ न्यूट्रलाइज करने के लिए, आप आए हो कुछ न्यूट्रलाइज करने के लिए। आप किसी को पनिश करने के लिए नहीं आए हो, आप किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं आए हो। एम आई राइट? लेकिन हमें जब समझता नहीं ना, तो वी स्टार्ट ब्लेमिंग द पीपल कि यार ये मेरे ऊपर कुछ कर रहा है, इसकी वजह से मेरी लाइफ मेस है, आई नीड टू गेट सेपरेटेड, आई नीड टू टेक डिवोर्स, आई नीड टू दिस। मतलब हमें ये लगता है कि वो कुछ कर रहा है, उसके वजह से मैं हूँ। बट व्हाट रिसर्च से, इट इज़ ओनली अ न्यूट्रलाइजिंग फॉर्मूला। जैसे मैंने एटीएम से पैसे निकाले, और कल अगर मैं बैंक में जाके अगर पासबुक में से एंट्री निकालता हूँ, तो उसमें माइनस रहेंगे कि नहीं पैसे? और अगर मैं उसमें डालता हूँ पैसे बैंक में, और अगर मैं एटीएम से मैं स्टेटमेंट निकालता हूँ, तो इसमें भी दिखाएगा कि नहीं? सो डोंट यू थिंक इट्स कनेक्टेड? सो वाई वी मीट ईच अदर? हम एक दूसरे को मिलते क्यों हैं? न्यूट्रलाइजेशन के लिए, किसी को पनिश करने के लिए नहीं मिलते। और अगर इतना समझ लिया ना, इट्स इनफ इन द लाइफ। इज इट क्लियर? राइट? नाउ विल सी कि लोग एक्चुअली करते क्या हैं। अलग अलग तरीके से जब उसको समझ नहीं पाते ना, तो किसी के अंदर फियर, किसी के अंदर गिल्ट, किसी के अंदर शेम, ग्रीफ, लाइज, इल्यूजन एंड अटैचमेंट, ये लोगों के अंदर क्रिएट होता है। सब बिकॉज लोग कर्मा को समझे नहीं ना, तो किसी के अंदर फियर रहता है, यार मेरे से ये नहीं होगा तो वैसा होगा। तो फीमेल्स के अंदर फियर ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू मेल्स, इसलिए वो लोग ड्राइव कम करते हैं, राइट? और डिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं फीमेल्स, राइट? और मेल्स में क्या होता है कि वो लोग बहुत जल्दी चेंज होते हैं, बिकॉज दे आर फ्रॉम दैट शिवा फ्रीक्वेंसी। तो इन लोगों के बहुत सारे इल्यूजनरीज ज़्यादा होते हैं, लेस प्रैक्टिकल। और फीमेल्स इंट्यूटिव ज़्यादा होते हैं, तो उनको जल्दी समझ में आता है कि आगे क्या होने वाला है। मेल्स को समझता नहीं है। एम आई राइट? सो मेल्स एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा करते हैं, फीमेल्स एक्सपेरिमेंट्स कम करते हैं, बिकॉज उनमें फियर ज़्यादा होते हैं। फीमेल्स कंफर्ट जोन में ज़्यादा होते हैं,
They don't like movements. They don't like the things to be changed. They want same thing at same place. समझ में कि नहीं? So कुछ चीजें हैं ना, हमें किसी भी तरह से हीलिंग करके अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को निकालना पड़ेगा. बिकॉज जब तक आप अपने ये ब्लॉकेजेस नहीं निकालते हो जो आपके प्रेजेंट लाइफ के हैं, आई डोंट थिंक कि आपके हार्मोनल बैलेंस होंगे या आपके ग्लैंड्स ऑर्गन सिस्टम्स नॉर्मल होंगे. राइट? सो वॉट एवर हैपन दैट हैपन्स फॉर द बेस्ट. दिस इज द बॉटम लाइन. बिकॉज अगर आप फियर नहीं निकालोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा मुझे बताओ. हाँ, बढ़ नहीं पाएंगे. और अगर बॉडीली देखें तो अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है. समझ में कि नहीं? आपके ये पैर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, साइटिका का प्रॉब्लम हो सकता है, स्पॉन्डिलोटिस का प्रॉब्लम हो सकता है. किसी को भी स्पाइनल प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, इसका मतलब उसमें कुछ तो फियर है. अगर वो फियर निकाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम. जैसे आपने देखा 1.5-2 साल का बच्चा है ना, उसमें फियर नहीं है, ऊपर जाएगा जंप करके नीचे आएगा. समझ में कि नहीं? वो स्नेक भी आएगा तो उसके साथ खेलेगा, डॉग भी आएगा उसके साथ खेलेगा, फियर नहीं है. कॉकरोच भी आएगा तो उसके साथ खेलेगा, फियर नहीं है. हम उसके अंदर फियर क्रिएट करवाते हैं, तब उसको लगता है अच्छा ये डरने वाली चीज़ है, तो फिर वो खुद डरता है. यू गॉट माई पॉइंट? सो द लाइफ जर्नी इज बिटवीन फियर टू फ्रीडम. लाइफ जर्नी इज बिटवीन फियर टू फ्रीडम. मतलब हमें फियरलेस बनना है. राइट? सेकेंड थिंग, कभी कोई भी चीज़ के लिए गिल्ट मत करो कि ये मेरे से गलती हो गई, ये मैंने क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे लाइफ में, देखो मेरे वजह से उसको ऐसे हुआ. डोंट फील ये होना था, ये होना था. आपका कॉन्ट्रैक्ट जैसे कर्मा में लिखा है, यू हैव टू सर्व इट. समझ में कि नहीं? वो मूवमेंट में आपका एक यूनिवर्स में कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि आपको वैसा ही करना है. गिल्ट करोगे आपका वाटर एलिमेंट खराब होगा, किडनी खराब हो जाएगी आप. ठीक है? उसके बाद कोई भी चीज़ का शेमफुल नहीं होना है. काफ़ी बार लोगों को अपीरियंस में या टेक्सचर में कॉम्प्लेक्सिटी आती है. सो नेवर फील दैट वे. वॉट एवर इज परफेक्ट. समझ में कि नहीं? अदरवाइज आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक्ड हो गया तो कहीं ना कहीं एनर्जी थ्रो नहीं कर पाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू वर्क. समझ में? राइट? उसके बाद नेवर बी ग्रीफ. मतलब हम बोलते हैं उदासी बैठे रहता है, दुखी रहता है, सैड ये रहता है. ग्रीफ में कभी रहना नहीं. यू हैव टू बी वेरी चीयरफुल, बिकॉज ये चक्र न तो ब्लॉक्ड हो जाएगा आपको, है ना? तो खुशी रहना. आपने देखा है कि जॉय ऑफ हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज यू बी हैप्पी. अगर हम कोई ये कॉमेडी शो देखते हैं किसी का भी, हम उस मोमेंट के लिए खुश रहते हैं, उसके बाद वापस ग्रीफ में चले जाते कि नहीं? राइट? सो वी हैव टू ऑलवेज बी लव एंड वी हैव टू बी हैप्पी. डोंट से लाइज. अभी लाइज देखो दो चीज़ की है. एक तो हम किसी को फंसाने के लिए लाइज बोलते हैं, और एक तो होता है कि हम बोल नहीं पाते उसको सच, इसलिए झूठ बोलते हैं. दोनों में फर्क है कि नहीं? राइट? कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है? नो, लाइज इज लाइज. अभी क्या होता है, आपको कोई चीज़ का दुख हुआ, अभी सपोज किसी की डेथ हुई, एज अ डॉक्टर मैं जाके तुरंत पेशेंट के रिलेटिव को नहीं बोल सकता हूँ, उसको इमीडिएटली दुख लगेगा, है ना? समझ में कि नहीं? तो मैं उसको बोलूँगा अभी थोड़े बहुत क्रिटिकल है, बचने के चांसेस कम है, ठीक है मैं और 5 मिनट ट्राई करता हूँ. तो स्लोली आई एम प्रिपेयरिंग दैट. सो दिस इज वन लाई विच आई एम स्पीकिंग फॉर देयर बेटरमेंट. द सेकेंड लाइज, मैं झूठ बोलता हूँ, नहीं अभी जिंदा है, आप एक काम करो, नीचे इतना पैसा भरो, मैं उनको वेंटिलेटर पे रखा हूँ और उनके बचने के चांस है. ही इज ऑलरेडी डेड, बट व्हाई आई स्पोक लाइज? सो दैट इज रियल लाइज. समझ में आ रहा है कि नहीं? काफ़ी बार आप अपने बच्चों को भी झूठ बोलते हैं, बिकॉज यू नो कि आपके बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, कोई चीज़ें ऐसे कुछ पूछते हैं, तो आपको थोड़ा बोलना पड़ता है. वाई? ये नहीं कि उसको हर्ट करने के लिए, बट यू नो कि ये एज नहीं है उसका समझने के लिए. राइट? सो अगेन योर इंटेंशन शुड बी वेरी क्लियर. सेकेंड लास्ट थिंग इज योर इल्यूजन. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की दुनिया में है. वी लिव इन इल्यूजनरी लाइफ. हमारे सबके बिलीफ सिस्टम इल्यूजनरी है, हमारी जो भी मान्यताएं हैं इल्यूजनरी है. एक्सपीरियंस विच यू हैव नॉट टेकन इज इल्यूजनरी. एम आई राइट? फिर वो एक्सपीरियंस दूसरों के
भगवान के होंगे, गुरुओं के होंगे, टीचरों के होंगे, आपके ब्रदर सिस्टर फादर मदर किसके भी होंगे, फॉर यू इट इज़ इल्यूशनरी. यू शुडंट फॉलो एनी वंस माइंडसेट, यू हैव टू टेक योर ओन एक्सपीरियंस. एम आई राइट? क्योंकि कोई भी एक बिलीफ सिस्टम एक वेजिटेबल के ग्रेवी के जैसे होता है कि वो ग्रेवी तो वैसे ही चलने वाली है, कोई भी सब्जी डालो टेस्ट तो वही आने वाला है. समझ में है कि नहीं? अब इस्लामिक का खुद का एक बिलीफ सिस्टम है, हिंदू का खुद का एक बिलीफ सिस्टम है, राइट? वो बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग पकड़ के रखा है कि उनको दूसरी चीज़ें इल्यूशनरी लगती है कि बाकी कोई धर्म नहीं है, बाकी कोई गुरु नहीं है, मेरा ही गुरु या मेरा ही धर्म सबसे ऊंचा है. डोंट यू थिंक इट्स एन इल्यूशनरी? राइट? सो नेवर से दैट वे, एक्सेप्ट एवरीथिंग कि भाई उसका भी जो है हो सकता है, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट सिलेबस, डिफरेंट स्कूल एंड विद डिफरेंट बिलीफ सिस्टम दे हैव ग्रोन अप, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट इज द ईगो अटैचमेंट. ये क्या होता है? हमारा कोई भी अटैचमेंट है ना, हमारे क्राउन चक्र को बंद कर देता है. बिकॉज एनी डिवाइन एनर्जी विल नॉट एंटर इनसाइड यू अनलेस यू आर लिविंग फ्री विद फ्रीडम. समझ में आया कि नहीं? आपने कभी सुना है किसी भी इंसान को टेंपल में बिठा के उसकी प्राण प्रतिष्ठा की है? कभी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई इंसान फ्रीडम से नहीं जी रहा. एक पत्थर की मूर्ति ना, इट इज टोटली फ्री, इट हैज नो अटैचमेंट. आपने देखा 3-4 साल पहले जब इतनी बाढ़ आई केदारनाथ या ऋषिकेश में, आइडल टूट गई, गुजरात में भूकंप आया, इतने मंदिर खंडित हो गए. नो अटैचमेंट. भगवान की मूर्ति में उनको खुद से कोई अटैचमेंट है? नहीं है ना. समझ में है कि नहीं? लेकिन किसी भी गुरु को अगर आप लाइवली बिठा के उसका अगर मंदिर बनाओगे, he will 101% have an ego, he will have an attachment with himself. So this is very important factor. समझ में कि नहीं? So आपको कभी किसी से अटैच नहीं होना है. You should love everyone, but you shouldn't be attached to anything. Because attachment से insecurity create होती है कि ये कल नहीं रहा तो, ये गुरु मेरी लाइफ में नहीं रहे तो, हस्बैंड मेरी लाइफ में नहीं रहे तो, बच्चे कल मेरी नहीं सुनेंगे तो. समझ में कि नहीं? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू बी टोटली फ्री. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ लास्टली वील सी हाउ एवरी चक्र इज कंसर्न विथ योर डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स. हर चक्र किसी न किसी हार्मोन से, मैंने शुरू में कहा, कनेक्टेड है, राइट? तो हर, अगर आप सिस्टम देखोगे यहाँ पे, हर सिस्टम कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. इज इट क्लियर? मतलब ये चक्रस जो हमने शुरुआत की थी, अब आपको समझ में आ रहा है आपके फिजिकल बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. अगर आपका कोई भी चक्र में स्लो ऑसिलेशन है या फास्ट ऑसिलेशन है, आपको नहीं लगता आपकी सिस्टम में गड़बड़ हो जाएगी? बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जो भी गड़बड़ होती है उसकी हम टेस्टिंग करवाते, ब्लड टेस्टिंग, सोनोग्राफी, जो भी हम करवाते, हम उसकी पैरामीटर को नॉर्मल करने की कोशिश करते. चक्रों को कभी नॉर्मल करने की कोशिश नहीं करते. हैव यू लिसन? नहीं, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि चक्रों को नॉर्मल करने से हमारे पैरामीटर्स नॉर्मल होंगे. ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल या क्रिएटिनिन या थायराइड या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, हमें कभी नहीं पता था, राइट? हमें तो क्या लग रहा था ये एबनॉर्मल है, शायद एज के वजह से है, या शायद हेरिडेटरी है, जेनेटिकली है, मेरी लाइफस्टाइल है, जो भी है. सो यू आर ट्राइंग टू करेक्ट केमिकली, नॉट स्पिरिचुअल. समझ में कि नहीं? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चक्र से करने हैं. सो इसके लिए क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? You need to be aware about your thoughts. This is first thing. You need to be aware about your words. Second thing, you need to be aware about your action. You need to be aware about your habits. You need to be aware about your character, and you need to be aware about your destiny. This is very important. क्योंकि जो आपका कैरेक्टर है वही आपका डेस्टिनी बनने वाला है. समझ में कि नहीं? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको चक्र को नॉर्मल रखने हैं तो थॉट्स, इमोशन, बिकॉज थॉट्स आर इलेक्ट्रिकल, इमोशंस आर मैग्नेटिक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से एक ऑरा बनता है, एक एनर्जी फील्ड क्रिएट होती है. समझ में कि नहीं? तो खाना इम्पॉर्टेंट है, क्या खाते हो, क्या सोचते हो, वो इम्पॉर्टेंट है. कहाँ पे आपके इमोशंस है वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कहाँ पे आपकी एक्शंस है ये इम्पॉर्टेंट है. आपकी हैबिट्स क्या इम्पॉर्टेंट है,
लोग बोलते हैं नॉर्मली कि दारू सिगरेट तंबाकू की आदत होती है, ऐसे नहीं, इंसान को कोई भी चीज़ की आदत हो सकती है, कोई भी चीज़ की आदत हो सकती है कि नहीं मुझे तो पनीर की सब्जी चाहिए, वो भी एक हैबिट है, समझ में कि नहीं, मुझे खाने के साथ कुछ ये चाहिए, मुझे खाने के साथ वो चाहिए, वो भी एक हैबिट है, राइट। मुझे ना चलते चलते किसी को लात मारना है, उसकी भी एक आदत है, दैट इज़ ऑल्सो हैबिट, समझ में कि नहीं। सो ये हैबिट मेक्स अ पैटर्न, इट मेक्स अ लूप साइकिल ऑफ योर कर्मा और यू गेट एंटेंगल्ड इनटू इट। तो आपको क्या करना होगा, आपको है ना हर हैबिट के बारे में अवेयर रहना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि मैं दिन में 10 बार 5 बार करता हूँ या करती हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है। यू हैव टू ब्रेक दोज हैबिट, है ना। जैसे आज आप अपने बच्चों को देखते हो कि वो मोबाइल के गेम्स खेलते हैं, तो उनकी हैबिट हो जाती है कि नहीं, यू डोंट गेट इरिटेटेड, राइट। अब मेल्स सुबह न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़ चैनल देखेंगे, फीमेल्स को बुरा लगता है क्योंकि वो एक हैबिट है। फीमेल्स टीवी सीरियल्स देखते हैं, दूसरे को बुरा लगता है। आपके एंसेस्टर्स जो भी आपके घर पे रहते हैं, वो यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, उनकी एक हैबिट है, वो आपको बुरी लगती है, समझ में कि नहीं। सो अनलेस यू ब्रेक योर हैबिट्स, यू आर नॉट गोइंग टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम। ये चीज़ ध्यान में रखो, है ना। हमें तो क्या लगा नहीं, ये दारू सिगरेट की आदत होती है, ऐसी नहीं है, कोई भी चीज़ की आदत है। सो एवरी पीरियडिकली यू नीड टू ब्रेक योर ओन पैटर्न। सोना, उठना, खाना, पीना, बोलना, हर चीज़ की पैटर्न। जैसे नहीं मुझे तो यही सब्जी पसंद है, यू ब्रेक दैट हैबिट। मुझे तो ऐसे ही कपड़े पहनने पसंद है, ब्रेक दैट हैबिट। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ब्रेक नहीं करोगे ना, तो बड़ी तो कभी कर नहीं पाओगे। अभी आप में एनर्जी है, अभी आप ब्रेक कर सकते हो। कुछ एज के बाद आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी और आप ब्रेक भी नहीं कर पाओ, यू विल बी वेरी स्टबर्न, एम आई राइट। 90% जो अभी हमारे पेरेंट्स जो आश्रम में रहते हैं, जिनको हमने छोड़ा है, इसका रीज़न क्या है, उनकी हैबिट्स वो तोड़ नहीं पाए और हम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाए। किसी को पसंद नहीं अपने पेरेंट्स को आश्रम में डालना, लेकिन करेंगे क्या, क्योंकि बच्चों की अपनी पैटर्न है, हैबिट्स है, हस्बैंड वाइफ की अपनी हैबिट्स है, उसमें अगर हमारे पेरेंट्स की अपनी हैबिट्स अगर हमें तकलीफ देती है, हाउ यू विल टॉलरेट देम, समझ में कि नहीं। सो मैं जब भी सीनियर सिटीजन के आश्रम में जाता हूँ, मैंने इनको बोला आप उनके वजह से नहीं हो, आप अपने गलत हैबिट्स के वजह से यहाँ हो। इफ़ यू वुड हैव बीन फ्लेक्सिबल, इफ़ यू हैव बीन पॉजिटिव, आपको कौन बाहर निकालता था, समझ में कि नहीं। यू आर वेरी स्टबर्न, यू आर वेरी रिजिड, और आज के ज़माने में द रिसोर्सेस आर लिमिटेड, नीड्स आर मोर, डिज़ायर्स आर मोर, है ना, और इनपुट कम है और आउटपुट ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ऐसे होने वाला है कि नहीं, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट योर हैबिट्स। सो दिस वी हैव स्पोकन अबाउट द होल, दिस इज़ द बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी, क्योंकि एक ही स्लाइड में कंप्लीट आ गया है। योर प्लानिट, योर पास्ट लाइफ, योर चक्रास, योर एलिमेंट्स, ये टोटली आ गया है। यू कैन टेक द पिक्चर ऑफ दिस, बिकॉज इसमें टोटली सब कुछ आ गया है एक ही स्लाइड में। कि अगर आपको कभी रिवीजन करना है फुल टॉक को, तो ये एक ही स्लाइड में आप पूरी तरह से उसको रिवाइज कर सकते हो। So where does your past life karma, present life, ancestors karma, element कौन सा है, planet कौन सा है, everything is here. You see M, material, marriage, Mangal, and all the what we say, all that we want in the life, ये सब कुछ यहाँ, जैसे मैंने कहा रोटी कपड़ा मकान, ये सब कुछ यहाँ पे है, right? सो दिस चक्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए काफ़ी बार हम बोलते हैं ना, ये तो पैदाशी रिच है, ये तो पैदाशी अच्छे घर में पैदा हुआ, बिकॉज इसका रूट चक्र ही अच्छा था, पास्ट लाइफ उसकी अच्छी थी, तो प्रेजेंट लाइफ उसकी अच्छी है ना। आप जो लोग स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ आपने वो नहीं किया जिसके वजह से आज आप कंफर्टली जी पा रहे हो। लेकिन आज अगर प्रेजेंट आपका अच्छा होगा, तो आपका प्रेजेंट, फ्यूचर या नेक्स्ट लाइफ विल बी वेरी गुड, समझ में कि नहीं। नॉर्मली हम जो एफडीज करते हैं या मनी सेविंग करते हैं, हम फ्यूचर के लिए करते हैं ना, राइट। सो आई थिंक सो वी शुड सेव एनर्जी, वी शुड डू गुड थिंग्स, सो दैट इन फ्यूचर इट विल बी हेल्पफुल टू यू, समझ में कि नहीं। जिसको हम पुण्य कहते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में, कि जितना आप सेवा करोगे, जितने पुण्य कमाओगे,
तो ये आपको प्रेजेंट की फ्यूचर में काम आएगा या नेक्स्ट लाइफ में काम आएगा या ये आपके बच्चों के लिए काम आएगा, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर दैट यू नीड टू डू रेगुलर मेडिटेशन, यू नीड टू अलाइन योर चक्रास. So this is where the aura stands, balancing of the two energy, yang yin energy, शिव शक्ति जिसको हम बोलते हैं. जो आपने शुरू में जो वीडियो देखा था, now you can conclude कि what I mean to say कि शिव शक्ति की एनर्जी मतलब मेल फीमेल जब पॉजिटिवली रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, तो दोनों की एनर्जी बैलेंस रहती है. हस्बैंड वाइफ को कर्ज करे या वाइफ हस्बैंड को कर्ज करे तो कहीं ना कहीं एनर्जी इम्बैलेंस रह जाती है, राइट? सो दिस इज हाउ वी हैव अ डिफरेंट ऑरा फोटोग्राफी मशीनरीज. ये ऑरा भी मशीन है जिससे सिर्फ कॉन्शियस ऑरा देख सकते हैं, बट प्रॉब्लम है हर मोमेंट में कॉन्शियस ऑरा चेंज होता है, आपका थॉट्स इमोशंस चेंज होते हैं. इट्स एन अनस्टेबल. सो मेडिकली आई विल नेवर एडवाइज टू गो फॉर दिस ऑरा इन्वेस्टिगेशन बिकॉज अनस्टेबल है ना, राइट? हम लोग ज़्यादा करके जो ऑरा की इन्वेस्टिगेशन करते हैं दैट इज एट ऑल द लेवल्स, फिजिकल लेवल, एथिकल लेवल, इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, ऑल लेवल पे हम करते हैं बिकॉज हमें उसका रिपोर्ट बनाना पड़ता है, पूरा उसका डिटेल बनाना पड़ता है. तो उसके लिए हमें ये 7 लेयर्स ऑफ द ऑरा की पूरी स्टडी करनी पड़ती है. हमारे 7 लेयर्स हैं. बाहर का स्पिरिचुअल है, फिर मेंटल है, फिर इमोशनल है और अंदर के 4 फिजिकल ऑरा होते हैं. तो रातों रात कोई बीमार नहीं पड़ता कि आज सोया और कल कैंसर हो गया. कभी आपने सुना है? बीमारी अंदर 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 चलते रहती है जो हम उसको कैच नहीं कर पाते. फिर पता चलता है बाप रे ये तो इतना स्टेज का कैंसर निकला, ये इसको तो पैरालिसिस हुआ, बट उसको 6 महीने, 1 साल, 2 साल से दूसरे लेयर्स में प्रॉब्लम थी, ये लेयर्स में प्रॉब्लम थी. इसको ठीक नहीं किया इसलिए वो अंदर चले गए. आपने थॉट्स ठीक नहीं किया, इमोशंस ठीक नहीं किया, आपने हैबिट्स ठीक नहीं की, आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं की, तो धीरे 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 आपके अंदर के ऑरा में वो घुसता गया और उसके बाद में आपकी ये बॉडी के अंदर वो एंटर हो जाता है. समझ में कि नहीं? सो यू नीड टू टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू क्लियर योर एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑरा. दिस इज अनस्टेबल ऑरा, दिस इज अ स्टेबल ऑरा. नेचर, कैरेक्टर हम जो बोलते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑरा है, राइट? सो ये स्टेबल है इसलिए हम इसको मेडिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं. वो पहले वाला ये जो था ये अनस्टेबल ऑरा है. अनस्टेबल से हम कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते. मैं 1 मिनट में कुछ मंत्र बोलूँगा, मेरा ऑरा अच्छा हो जाएगा. आपके बारे में कुछ गलत सोचूंगा, ऑरा नेगेटिव हो जाएगा. हाउ कैन आई रिलाई ऑन दिस ऑरा? लेकिन काफ़ी बार क्या लोग ये ऑरा मशीन यूज़ करते हैं बिकॉज इसमें प्री लोडेड सॉफ्टवेयर है, प्री लोडेड रिपोर्ट्स है, 21 पेजेस का आता है एंड कंक्लूजन एक ही रहता है कि योर ऑरा इज ग्रीन कलर, यू आर गुड बाय हार्ट. और हम खुश हो जाते हैं कि चलो अल्टीमेटली मेरा ग्रीन अच्छा है. समझ में कि नहीं, राइट? एंड दिस इक्विपमेंट इज मोर एक्सपेंसिव. ये 7 lakhs के अप्रॉक्सीमेटली इक्विपमेंट है, 7-8 लाख का है. ये जर्मनी वाले यूज़ करते हैं GDV मशीन, गैसियस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन. इसमें पता चलता है आपका ऑरा लीक किधर होता है, ड्रेन किधर होता है. कहीं तो लीकेज हो रहा है ना आपके चक्र में से, जो भी चक्र आपके वीक है वहाँ से ऑरा आपका ड्रेन होता है. दिस इज अ कंप्लीट ऑरा, यहाँ पे कोई ड्रेनेज नहीं है. ये ब्राज़ील वाले यूज़ करते हैं डिजिटल ऑरा जिसको बोलते हैं. ये ज़्यादा करके हम लोग यूज़ करते हैं BFR बिकॉज एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ऑरा की स्टडी की जाती है. इसमें राइट साइड का पास्ट ऑरा है, ये प्रेजेंट का ऑरा है और ये फ्यूचर का ऑरा है. यू नीड टू ब्रेक योर पैटर्न. ये पैटर्न ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कल भी कुछ कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं, आने वाले कल में भी वही करेंगे. यू नीड टू ब्रेक द पैटर्न, यू नीड टू लर्न समथिंग न्यू. समझ में कि नहीं? कुछ नया एक्सप्लोर करो. वही के वही चलते रहोगे ना, लाइफ खत्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा. डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों के, राइट? दिस पर्सन इज स्टेइंग विद द सेम पैटर्न. सो ये सब कलर्स के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फूड के, एलिमेंट्स के, जो हमने इनिशियली जो डिस्कस किए, सो दे आर इम्पॉर्टेंट. सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? आई होप यू हैव अंडरस्टूड. मैंने आज बहुत कोशिश की आपको बेसिक लेवल से समझाने के लिए बिकॉज आई एम नॉट ट्राइंग टू यूज़ कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँ और देन यू विल बी इन पजल कि भाई ये क्या बोला है. लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो काफ़ी ऐसे इन्फॉर्मेशन और भी मिल पाएंगे. और अगर आप डॉक्टर उदय शाह यूट्यूब पे टाइप करोगे, 650 मेरे टॉक्स हैं. हमारी वेबसाइट है साई करुणा मिशन या drudesha.com, तो उसमें आपको बहुत कुछ मिल सकता है, राइट? बट अल्टीमेटली यू नीड टू नो योर सेल्फ.
आज का जो टॉक था, मैंने ऐसे 8,500 से ज़्यादा टॉक लिए हैं, मेरा मेन पर्पस है टू स्प्रेड द साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज आई एम नॉट अ सेंट कि मैं बोलूँ आप मुझे फॉलो करो, ना तो मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर गुरु है जिसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ कि भाई मेरे गुरु को फॉलो करो. आई टेल फॉलो योर हार्ट बिकॉज ही इज़ द ओनली गुरु इन योर लाइफ. समझ में कि नहीं? सो व्हेन यू फॉलो योर हार्ट यू आर नेवर रॉन्ग, एंड वंस यू फॉलो योर हार्ट यू टेक योर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी. भाई ये मैंने किया है, लेट मी गो थ्रू इट. आई डोंट वांट अदर पर्सन टू सफर फॉर मी. इज इट क्लियर? समझ में कि नहीं? सो यू मेडिटेट, यू अंडरस्टैंड कि आपकी तासी क्या है, आपका नेचर क्या है, आपका थॉट्स क्या है, आपके इमोशंस क्या है, आपके हैबिट्स क्या है, आपका नेचर, आप कैरेक्टर क्या है. यू पहले वो समझ. हम क्या करते हैं ना, जीपीएस के जैसे सिर्फ डेस्टिनी डाल देते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, बट वेदर यू डिजर्व और नॉट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड कि मैंने ये डाल तो दिया लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है. देयर शुड बी सम अलाइनमेंट ना. समझ में कि नहीं? अभी मैं यहाँ के जीपीएस में लिखूंगा कि मुझे बॉम्बे एयरपोर्ट पे पहुँचना है, विल एनी कार टेक मी ओवर देयर? मेरा डेस्टिनेशन में कहाँ डाल रहा हूँ और मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. सो वेयर डू यू स्टैंड, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? इसलिए आप रोज़ क्या करो, 5 to 10 मिनट्स रोज़ आप मेडिटेशन करो. अब मेडिटेशन में आपको एक सिंपल बताता हूँ, सिर्फ आप आँख बंद करके बैठो, जो भी पोजीशन में, पोस्चर में बैठना चाहते हो, जो भी टाइम पे, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ और कुछ मत करो. क्योंकि जैसे आपका इनहेलेशन पे आप फोकस करोगे तो आपका ब्रेथ जो ब्रेन में जा रहा है, जो थॉट्स के बंडलों के साथ है, आपको समझ में आएगा कि मैं बार बार किस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, मेरी थॉट्स की पैटर्न क्या है, मेरी इमोशंस की पैटर्न क्या है. देन यू कैन फिगर इट आउट कि मुझे लाइफ में क्या अचीव. बिकॉज अभी आप लाइफ पर्पस में इतने उलझे हुए हो कि आपको आपका सोल पर्पस ही नहीं पता. सो यू आर स्ट्रगलिंग, राइट और नॉट? समझ में कि नहीं? यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी सक्सेसफुल इन मटेरियल वर्ल्ड, इन फैमिली, यू जस्ट वांट टू बी सक्सेसफुल. लेकिन काफ़ी बार ऐसे होते हैं, हमें पता चलता है हम अपने आप को, हमारे खुद को तो कितना पीछे छोड़ चुके हैं इस सक्सेस के चक्कर में, राइट? सो स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ, स्पेंड टाइम विथ नेचर. दैट इज सेकेंडरी बिकॉज यू आर सीन 5 एलिमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट? स्टार्ट स्पीकिंग टू योर प्लैनेट्स, अगेन दे आर कनेक्टेड विथ यू. समझ में कि नहीं? स्टार्ट स्पीकिंग टू प्लांट्स, स्टार्ट स्पीकिंग टू द पीपल अराउंड यू, बिकॉज ये जो भी लोग आपके आसपास है ना, दे आर योर अनहील्ड पार्ट. तो डोंट अवॉइड दैम. नहीं, इससे मैं दूर ही रहूँ ना, वही अच्छा. डोंट टेल देम. इफ इज देयर मीन्स समथिंग इज कम इन माई लाइफ टू न्यूट्रलाइज माई कर्मा, नॉट टू पनिश मी. पहले तो वो फंडा ही चेंज कर दो आज के बाद, है ना? मैंने देखा है लोग 3-3, 4-4 बार डिवोर्स लेने के बाद भी उनकी लाइफ सेटल नहीं हुई, बिकॉज वो अवॉइड ही करते हैं. यू कांट डू दैट थिंग. कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए लाइफ बिटवीन लाइफ, और वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है. यू कैन नॉट जस्ट गो अवे फ्रॉम एनीथिंग, राइट? विथ योर पेरेंट्स, विथ योर हस्बैंड, वाइफ, बच्चे जो भी हैं आपके, कंप्लीट योर कमिटमेंट्स. उस चक्कर में हो सकता है आपका सक्सेस डिले हो, मटेरियल अचीवमेंट थोड़ा डिले होगा, डजंट मैटर. अगर अचीव होने के बाद भी कर्मा अगर ऐसे ही रह गया, अगर आपके न्यूट्रलाइजेशन का फंडा ऐसा ही रह गया, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट सक्सेस? टेल मी. समझ में कि नहीं? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें कोई सेंट नहीं बनना है. वी डोंट वांट टू लीव द फैमिली एंड गो टू हिमालय, नथिंग लाइक दैट. विल स्टे हियर एंड विल अंडरस्टैंड. इसलिए हम ऑरा फोटोग्राफी क्यों करते हैं, जिसमें हम लोगों को है ना इन एंड आउट सब कुछ समझाते हैं कि आपके चक्रस कैसे हैं, आपका कौन सा कलर डार्क है, लाइट है, कौन से ऑर्गन में, सिस्टम में, एंड व्हाट डू यू वांट, व्हाट यू नीड टू करेक्ट योरसेल्फ, वो हम समझाते हैं आपको, राइट? सो उससे क्या होता है, हमें समझ में आता है कि मुझे नेक्स्ट करना क्या है. जब तक आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्या है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, टेल मी. मैं हर 2-3 महीने में खुद का भी ऑरा करवाता हूँ मेरे टीम से, और मैं देखता हूँ कि यार अभी बहुत डार्क आया है, तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ इवेंट में. आई गो टू सम हिली स्टेशन, आई डू मेडिटेट, और 2-3 दिन के बाद मैं वापस आता हूँ. बिकॉज इवन आई नीड क्लींजिंग, आई नीड टू गेट रिचार्ज. ऑल द टाइम आई एम ट्रैवलिंग, आई एम गिविंग अ टॉक, आई एम हीलिंग पीपल, आई एम गेटिंग ड्रेन. समझ में कि नहीं? सो ये सैटरडे संडे जो वीकेंड्स आपको मिलते हैं, डोंट जस्ट डू शॉपिंग एंड एन्जॉयमेंट और ड्रिंक लो, ये लो, ये सब सिर्फ मत करो. डू समथिंग पॉजिटिव. आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्टॉप, बट यू कैन ऐड समथिंग पॉजिटिव. कि नहीं, कोई एक लाइट म्यूजिक चालू करके आँख बंद करके बैठ गए, म्यूजिक मेडिटेशन कर लिए.
समझ में नहीं, बिकॉज ये ही टाइम है जो आपकी बैटरी को चार्ज करेगा और बाकी के 5 दिन आपको काम करने में मदद करेगा। सक्सेस उसके पास है जिसके पास एनर्जी है। डिग्री कितनी भी हो आपके पास, माइंड कितना भी आपका शार्प हो, एनर्जी नहीं है ना, यू आर थ्रोन अवे। ये आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, एम आई राइट? तो यू नीड टू जनरेट दैट एनर्जी। अब एनर्जी को हम क्रिएट तो नहीं कर सकते, हमने फिजिक्स में सीखा, बट कन्वर्शन तो कर सकते हैं। आपकी जो भी ब्लॉकेजेस है जिसके वजह से आपका एक डार्क एनर्जीज है उसको आप लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं मेडिटेशन, योगा से। अभी कितने गाइडेड मेडिटेशन अवेलेबल्स है ना? अभी तो कितना अच्छा है। आज से 20 साल पहले ऐसा तो कुछ था नहीं। सो वी आर लकी। मैं भी कभी फ्री रहता हूँ तो अलग अलग एक्सप्लोर करता हूँ और गाइडेड मेडिटेशन में बैठ जाता हूँ। क्या होने वाला है, कुछ तो तरंगे जाएगी, कुछ तो एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी हमारी, राइट? यू लर्न समथिंग, कुछ योगा, पतंजलि योगा सीखो, हट योगा या प्राणी किलिंग सीखो, रेकी। सो मेनी थिंग्स आर देयर। वी डोंट इन्वेस्ट द मनी इन सच थिंग्स। हमें लगता है यूजलेस है ये, अभी एज थोड़ी है हमारी करने की, लेकिन जब तक वो एज आ जाती है ना तब तक वो चीज़ें भी काम नहीं आती है। देन यू आर ओनली डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन और सर्जरी। दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर योर एनर्जी। इज इट ओके? सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? ये जो ऑरा चक्र है, हाँ, you have to focus on all the chakras. ऑल द चक्रस, बिकॉज क्या है, ये सारे गम पद्धति, ये विज्ञर है, इंद्रधनुष है। आप किसी एक पे ही फोकस नहीं कर सकते। In the spirituality, they say you have to open one chakra by one chakra. दैट shouldn't happen। क्या होता है ना, वी आर फर्स्ट